All right. So let's start paper 5 of the topical questions. Uh, According to this, a solder is an alloy of metals which is used to join other metal pieces together. And guys, alloy is a mixture of metal. तो obviously ये जो solder है इसमें भी mixture of metal होगा. So this mixture consists of 65% by mass of zinc, 20% by mass of aluminum, and 15% by mass of copper. So technically, what I'm saying is that the amount or the percentage uh, by mass of copper is very low in this solder. So it is difficult to calculate. Due to its small percentage. Okay. So examiner wants us to plan an experiment in which we need to confirm the composition of powdered sample of this solder by adding reagents and then extracting from the mixture each of the following in sequence. By the way, we need to extract the mixture in sequence. All right. So first we need to extract copper metal. Then we need to extract aluminum as aluminum hydroxide. Then we need to extract zinc as zinc hydroxide. And examiner has given us 3 different samples. The first one is 1 mole per dm cube ammonia. The second one is sulfuric acid 1 mole per dm cube. And obviously the mass of solder, that is 4 gram. Also, examiner is saying that uh, no other reagent should be used. The standard laboratory equipment is available, including a balance accurate to 2 decimal place. Okay, so we are using 2 decimal place balance. All right, and according to my lectures of P5, 2 decimal place balance has a larger percentage error. Okay, that's what you need to remember. So let's start. Let's see what we have in this part A. Complete the flowchart below to show the order in which the reagent would be added to solder to allow you to extract and separate the component as copper metal in step 1. So first of all, we need to extract copper metal in the step 1. So solder is basically the starting material, and we need to choose either sulfuric acid or ammonia in order to extract copper metal. So let me give you some sort of help here. See, if we use sulfuric acid in a step 1, obviously it's gonna react with zinc and convert it into zinc sulfate and hydrogen gas. All right. And remember, zinc sulfate is soluble in water. Similarly, solder contain aluminum also. If I'm going to use sulfuric acid in the first step, obviously it will turn to aluminum sulfate and hydrogen gas. So we need to balance the equation. We need to put 2 here. And since we have 3 sulfate ions, we need to put 3 here and obviously 3 here. Also, aluminum sulfate is soluble in water. Now, solder contain another metal which is copper. And we know that copper is less reactive as compared to hydrogen, which is why it's not going to react with sulfuric acid.
and therefore there will be no visible change. And also, copper is insoluble in water. So technically, when we use sulfuric acid in the first place in step 1, in fact, we need to write sulfuric acid. So when we need to write sulfuric acid, uh, we are going to get zinc sulfate and aluminum sulfate as, are the filtrates, while copper is going to be the residue because it is insoluble in water. So technically, um, these two are filtrates because they are soluble in water, whereas this is going to be the residue because it is insoluble in sulfuric acid. Uh, I hope it makes sense to you. So technically, substances present at the end of the reaction. So zinc sulfate, aluminum sulfate, and copper metal. Now the next is substances removed by filtration, if any. So obviously these two are soluble in water. These two are filtrate, and this is going to be the residue. So I'm going to collect copper in the first step after filtration. Okay. I hope it makes sense to you. Now this filtrate has these two substances, and according to the question, I need to extract aluminum hydroxide in the second step. So obviously I'm going to use this ammonia. Now let's talk about ammonia. When ammonia is placed in water, बेटा ये आयोनाइज होकर कन्वर्ट होगा अमोनियम आइंस में एंड हाइड्रोक्साइड आइंस में. इसका मतलब सॉल्यूशन में अमोनिया भी होगा और हाइड्रोक्साइड आइंस भी होंगे. ऑलराइट. सो अगर मैं स्टेप 2 में एल्यूमिनियम को एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा एक्वस अमोनिया एज द रिएजेंट. तो जब मैं इस फिल्ट्रेट को इस एक्वस अमोनिया से ट्रीट करवाऊंगा तो दो तरह के रिएक्शंस पॉसिबल होंगे. बहुत ध्यान से सुनिएगा. हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट था एज अ फिल्ट्रेट. ऑब्वियसली ये हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कंबाइंड होगा और ये कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में. और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे एंड टेक्निकली ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा. सही. यहां पर 3 लिखिए. ऑलराइट. सो इस फिल्ट्रेट में से एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो एक्वस अमोनिया में OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल होते हैं. उसकी वजह से प्रेसिपिटेट होगा और प्रेसिपिटेट होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर लेगा. बट एट द सेम टाइम उसी फिल्ट्रेट के अंदर जिंक सल्फेट भी है. राइट. ये जिंक सल्फेट क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक इसलिए ये एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा. ये बन गया कॉम्प्लेक्स आयन और यहां से सल्फेट आयन आ जाएगा. राइट. तो इसका मतलब ये जो जिंक सल्फेट है इट विल रिमेन सॉल्युबल इन वाटर और इसका कलरलेस सॉल्यूशन होगा. एंड ऑब्वियसली ये जो आपके पास जिंक का कॉम्प्लेक्स बना है ये
फिल्ट्रेट होगा, एंड ऑब्वियसली ये आपका रेजिड्यू होगा। सही। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जबकि अमोनिया जिंक के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो एग्जामिनर ने यहां लिखा हुआ है कि यू आर रिमाइंडेड that aqueous ammonia contain both OH negative ions and a complex forming ammonia molecule. इसका मतलब you can make complex and also you can use hydroxide ions. ठीक है? I hope it makes sense to you. तो जब हम aqueous ammonia use करेंगे तो substances present at the end of the reaction, so obviously एक तो हमें complex मिलेगा जिंक का, जो कि हमारा filtrate होगा, obviously soluble in water होगा, colorless solution होगा। और दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। याद रखिएगा कि ये आपका फिल्ट्रेट है और ये आपका रेजिड्यू है। तो फिल्ट्रेट और रेजिड्यू को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज करते हैं, एंड ऑब्वियसली इस टेक्निक के थ्रू हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे पास फिल्ट्रेट है उसके अंदर टेक्निकली जिंक का सोल्यूशन है, राइट? और एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप स्टेप 3 में जिंक हाइड्रोक्साइड को एक्सट्रैक्ट करो। सो अगर मुझे जिंक हाइड्रोक्साइड को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो मुझे ये देखना होगा कि मुझे इन दोनों में से कौन सा रिएजेंट यूज करना है। ऑब्वियसली आई एम गोना यूज सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट हैज अ रीजन बिहाइंड दैट। फर्स्ट लेट मी राइट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जिंक का कॉम्प्लेक्स है। आप जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे या यूज करेंगे तो टेक्निकली ये सल्फ्यूरिक एसिड इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आएंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके ये अमोनियम सल्फेट बना लेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर सॉल्ट। सही। और ये सॉल्युबल इन वाटर है, और ये आपका क्या होगा? फिल्ट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन क्यों हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि अमोनिया जो है वो बेस होता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। सही है। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? जिंक आयंस। ठीक। अब आप जानते हैं कि सोल्यूशन जो है वो उसका मीडियम एक्वस है। मीडियम एक्वस होगा तो जाहिर सी बात है उसके हाइड्रोक्साइड आयंस अवेलेबल होंगे। ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे जिंक हाइड्रोक्साइड में, और इस जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे आपको, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, एंड ऑब्वियसली ये आपका रेजिड्यू होगा जिसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे। तो व्हेन आई एम गोना यूज सल्फ्यूरिक एसिड एज द रिएजेंट इन द थर्ड स्टेप, ऑब्वियसली मुझे एक मिलेगा अमोनियम सल्फेट जो कि एसिड बेस्ड रिएक्शन की वजह से बन रहा है एज अ सॉल्ट, और दूसरा बनेगा बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड। और जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन के थ्रू आप किसको कलेक्ट करेंगे? जिंक हाइड्रोक्साइड को। ओके, माय गुडनेस। सो पार्ट ए में सबसे पहले एग्जामिनर कह रहे थे कि कॉपर को एक्सट्रैक्ट करो, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, फिर जिंक हाइड्रोक्साइड को, और उसके पीछे केमिस्ट्री पूरी क्या है वो आपके सामने आ गई। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि फॉर सम रीजन steps in the procedure you would need to be careful to add an appropriate quantity of the reagent. Appropriate quantity of the reagent. वो कह रहे हैं for each step of your procedure explain why particular quantities of reagent should be chosen. तो स्टेप वन में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, ऑब्वियसली मैंने एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है. और एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज किया है सो दैट जो जिंक और एल्यूमिनियम है उनको डिसॉल्व किया जा सके. We can dissolve zinc sulfate and aluminum sulfate. And also कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया गया था. यूज टू एक्सट्रैक्ट कॉपर. स्टेप टू में हमने एक्वस अमोनिया यूज किया था, ऑब्वियसली मैंने एक्सेस एक्वस अमोनिया यूज किया है. और मैंने एक्सेस एक्वस अमोनिया इसलिए यूज किया है ताकि हम जिंक सल्फेट को डिसॉल्व कर सकें एज कॉम्प्लेक्स आयन. ऑलराइट. एंड ऑल्सो मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं. एंड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्टेप थ्री में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था और मैंने एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था. और मैंने इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था ताकि मैं जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकूं. यूज टू एक्सट्रैक्ट zinc hydroxide and also used to neutralize aqueous ammonia. In the complex sign. Okay. Now the next part is the aluminum hydroxide and zinc hydroxide. तो एक आपके पास है aluminum hydroxide और दूसरा आपके पास है zinc hydroxide. ठीक है. वो कह रहे हैं have been extracted are difficult to dry. ठीक है. So it is better them to convert into their oxide. Obviously बेटा अगर मुझे ऑक्साइड बनाना है तो मैं इसको हीट करूंगा और जब मैं इसको हीट करूंगा तो इट विल टर्न टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसको भी हीट करूंगा
So it will turn to zinc oxide. एंड ऑब्वियसली अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं तो ये बनेगा वाटर, और यहां पर भी बनेगा बेटा वाटर। सही। सो वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब हाउ दिस कुड बी डन। सो आप जाहिर सी बात है थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं आप हीटिंग के थ्रू, उसके थ्रू हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस कुड बी डन थ्रू हीटिंग। और इस हीटिंग को हम क्या कह रहे हैं, हम इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऑलराइट। ऑल्सो एग्जामिनर ने एक चीज और कही हुई है इसमें, वो कह रहे हैं हाउ यू वुड मेक श्योर दैट ईच हाइड्रोक्साइड हैज बीन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। या देखो, एग्जामिनर ने ये स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के दिया है। मेक श्योर, मेक श्योर कैसे मेक श्योर करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो ये रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है एग्जामिनर, रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर मैं रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इसको हीट उस वक्त तक करूं दोनों हाइड्रोक्साइड्स को टिल अ कांस्टेंट मास इज ऑब्जर्व। सो हम यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट हीट द कंटेंट टिल अ कांस्टेंट मास is observed. Okay, I hope it makes sense to you. Let's move on to the next part of the question. The purpose of the experiment is to confirm the composition of the solder. When the experiment is carried out, state the measurements that would be taken. अच्छा जी, तो हमें तो measurements के लिए कह रहे हैं, तो भाई मेरे पास तो measurements दो तीन हो सकती हैं। पहली, measure the mass of solder, और जाहिर सी बात है मैंने 2 decimal place का weighing balance यूज किया हुआ है, तो मैं उसको यूज करूंगा। सही है। दूसरी चीज आप नोट करें, हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स आए थे, हमने यकीनन इन दोनों हाइड्रोक्साइड्स का मास वेग किया होगा। ठीक है। सो मेजर द मास ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, ये दो चीजें हो गई। फिर वो आगे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट वुड यू डू टू द कॉपर टू मेक श्योर दैट द करेक्ट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। अब इसके लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ काम है। आप पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब आपने स्टेप 1 में इस कॉपर को फिल्टर किया था, तो जाहिर सी बात है ये रेजिड्यू के तौर पे फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हुआ हुआ था। अब जब ये फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हुआ हुआ है, तो यकीनन इस कॉपर के अंदर ट्रेस अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। तो सबसे पहले आप इस कॉपर को वॉश करेंगे विद डिस्टिल वाटर। ठीक है। सो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, वॉश कॉपर विद डिस्टिल वाटर टू रिमूव
traces of zinc sulfate and aluminum sulfate. जब आप इसको वॉश कर लेंगे, देन आफ्टर दैट हम कॉपर को रिंस करेंगे विद प्रोपेनॉन सॉल्यूशन, क्योंकि प्रोपेनॉन मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है. सो रिंस कॉपर with propanol solution as moisture absorbent. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. ओ माय गुडनेस. ये है जनाब, इफ द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन वाज 1.50 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट वाज प्रेजेंट इन द सोल्डर. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? वी नीड टू फाइंड आउट द एमआर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम का मास 27 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. ऑक्सीजन का मास 16 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. सो यहां से मेरे पास एमआर आ जाएगा 102. I know the mass and I know the MR. I can find the moles of aluminum oxide. So let's find the moles of aluminum oxide. So ये हो जाएगा 1.50 divided by 102. So mass of aluminum oxide is 0.0147 moles. All right. In the third step, आपके पास एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में. ऑब्वियसली ये 2 मोल है, ये 1 मोल है. अगर हमने 0.0147 मोल्स कैलकुलेट किए थे, सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी हाउ मच? सो इट्स गोइंग टू बी 0.0294. We need to find out the mass of aluminum, और मास ऑफ एल्यूमिनियम डिटरमाइन करने के लिए हम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को रिलेटिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 0.0294 मल्टीप्लाई बाय 27. तो ये हो जाएगा 0.794 ग्राम, एंड दैट्स द आंसर. ओके, दैट्स द आंसर. बट 1 मार्क के लिए काफी कैलकुलेशन है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप इसको डिवाइड करें इसी तरह से, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, इसको मल्टीप्लाई करें 27 से, यू विल गेट दिस आंसर. तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं इफ यू नो हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. ओके. Next part, I think, is going to be the last part of this question. Examiner is asking, even if the experimental difficulties of extracting all of the copper from the mixture were overcome, it would be difficult to obtain an accurate mass of copper from this experiment. Suggest why. 1 mark. Okay. तो प्रॉब्लम ये है कि आपको बता दिया था मैंने कि कॉपर की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसलिए इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा. ओके, हम इसको लिख देते हैं. Copper has less amount of percentage in the solder, hence it is difficult to obtain an accurate mass. To obtain an accurate mass. I hope it makes sense to you. That's the end of this question. Let's move on to the next part of the question. Next question.
Okay. The enthalpy change for the reaction between magnesium atom and aluminum ion to produce magnesium ion and aluminum atom. Okay, by the way, first of all, आपको याद रखना चाहिए कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, then this reaction is going to be the displacement reaction. ओके okay. और दूसरी बात, एग्जामिनर यहां बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं आपसे कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली. व्हाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली? क्योंकि तमाम एलिमेंट्स की जो फॉर्मेशन की वैल्यू होती है वो टेक्निकली जीरो होती है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज जीरो, इसलिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. Okay, now the next is you are planned to experiment that will enable you to determine the value of the enthalpy change for the reaction 1 mole of magnesium with excess aqueous aluminum ion. You are provided with 0.3 gram of magnesium ribbon, 0.3 gram of aluminum foil, 1 mole per dm cube. Sulfuric acid standard laboratory experiment. वो कह रहे हैं write an equation when magnesium and sulfuric acid react together. That's an easy thing. Magnesium and sulfuric acid का जब रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. अगर आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन लिखें एल्यूमिनियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड की, सो ये भी इजी है. ये कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम सल्फेट में and hydrogen gas में. And these are the balanced chemical equation, by the way. Now the next is for the experiment to measure the enthalpy change when magnesium reacts with sulfuric acid. Name the independent variable. Independent variable किसे कहते हैं? What we change. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम चेंज क्या कर रहे हैं? एंड ऑल्सो ये भी याद रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इट हैज टू बी ऑन द एक्स एक्सिस. तो हम यहां पर चेंज क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे होंगे आप. तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप ये मेटल जो है वो चेंज कर रहे होंगे या मास चेंज कर रहे होंगे बेसिकली मेटल का. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. याद रखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है व्हाट वी मेजर. और याद रखिएगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है. और हम मेजर क्या कर रहे हैं? एंथैल्पी चेंज. और एंथैल्पी चेंज किससे मेजर होगी? टेम्परेचर चेंज से. तो इसका मतलब हम टेम्परेचर चेंज मेजर करेंगे in order to get the value of enthalpy change. Okay. By the way, जब एंथैल्पी के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो समटाइम्स इसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल भी पूछा जाता है. यहाँ एग्जामिनर ने पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ. कंट्रोल्ड वेरिएबल उसको कहते हैं जो कि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर या मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल शुड बी रिमेन सेम. तो आपके लिए कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे
1 experiment 2 experiment 3 different masses लेकर volume of experiment should be same. Okay, so that needs to be controlled. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कंट्रोल करना होगा, like it needs to be constant throughout the different procedures and different experiments. Okay, let's move on to the next page. In the experiment, 20 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid is added with 0.3 gram of magnesium. Calculate the minimum volume in cm cube of sulfuric acid. So सबसे पहला काम आप moles of magnesium determine कीजिए, because mass of magnesium given है. So 0.30 दिया हुआ है, उसको डिवाइड कीजिए 24.3 से, and obviously यहाँ से moles आएंगे. Let me find out 0.3 divided by 24.3, so it's going to be 0.0123 moles. Okay, my goodness. याद रखिएगा कि जो मोल्स मैग्नीशियम के होंगे वही मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के भी होंगे 1:1 के रेशियो की वजह से. और मुझे कैसे पता चल रहा है? मैंने अभी प्रीवियस पेज पे इक्वेशन डिटरमिन की थी. ये देखिए, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, राइट? तो इसका मतलब रेशियो होगा 1:1 का. अगर आपने यहाँ पर 0.0123 मोल्स कैलकुलेट किए मैग्नीशियम के, so obviously moles of sulfuric acid is going to be the same, that is 0.0123 moles, right? एग्जामिनर ने आपको कंसंट्रेशन दी हुई है सल्फ्यूरिक एसिड की, विच इज 1 मोल पर डीएम क्यूब. सो गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम कहेंगे कि पर डीएम क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब. सो 1000 सीएम क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 1 मोल. सो अगर आपके पास 0.0123 मोल्स आए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी हाउ मच वॉल्यूम? तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से और मैं डिवाइड करूंगा 1 से, सो मेरे पास आ जाएगा 12.3 cm cube, and that's my answer. Okay, suggest why 20 cm cube of sulfuric acid is used. मैं 20 cm cube of sulfuric acid इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मैग्नीशियम जो है वो फुली रिएक्ट हो जाए. यस, मैग्नीशियम से रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का, और मैंने 20 cm क्यूब लिया है सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज फुली यूज्ड अप हो जाए, टू मेक श्योर magnesium has been used up fully. Next is, you are also provided with 0.3 gram of aluminum. Fine. Calculate the minimum volume of 1 mole per dm cube sulfuric acid from 0.3 gram of aluminum. तो अगेन वही सेम ड्रिल है जैसे हमने मैग्नीशियम के लिए किया था. लेट्स फाइंड आउट द moles of aluminum. 0.3 divided by 27, I'll get moles. Let me find out. Let me use the calculator. 0.3 divided by 27 is going to be 0.0111 moles. Then let me show you the ratio between aluminum and sulfuric acid. So this is 2 mole and this is 3 mole, right? According to the equation. Let me show you. This is 2 mole, this is 3 mole. The ratio between aluminum and sulfuric acid is 2:3. So अगर आपने अभी aluminum calculate किया है 0.0111, so moles of sulfuric acid, so it's basically multiplied by 3 divided by 2,
So it's going to be 0.0166 moles. We know the concentration of sulfuric acid, that is 0.1 mole per 1 mole per dm3. So that's the same drill, guys. 1000 cm3 of sulfuric acid has 1.00 mole. We have calculated 0.0166 moles. So obviously volume is going to be how much in 2000? So 16.6 cm cube is the minimum volume required for this. And that's the answer. Okay. So that's the answer. और ये जो सीएम क्यूब आपने कैलकुलेट किया था मैग्नीशियम के केस में, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड ही का था. ठीक. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next page. Explain how you would carry out the experiment using 0.3 gram of magnesium. List the measurements you would make. अच्छा जी. अगर आपको याद हो, मैंने आपको एंथैल्पी के प्रैक्टिकल्स एंथैल्पी के प्रैक्टिकल्स आपने किए थे, और आपको याद हो मैंने थ्योरी भी पढ़ाई थी इसके अंदर. तो आपको याद होगा हमने एक प्लास्टिक कप लिया था, उसको हमने बीकर के अंदर रखा था. लाहौल वाला कुव्वत, ऐसा तो कोई प्लास्टिक बीकर नहीं बनाया भाई मैंने. ठीक है. इस प्लास्टिक कप के अंदर हमने सोल्यूशन रखा था. थर्मोमीटर इंजेक्ट किया था, अगर आपको याद हो. सही है. तो हम यहां पर क्या डिटरमिन कर रहे थे, मेजरमेंट्स क्या क्या थी इस केस में. सबसे पहली मेजरमेंट थी कि भाई वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक स्पेसिफिक लेना है मैंने. And this volume of sulfuric acid is going to be the mass of sulfuric acid, because 1 gram equals to 1 cm cube. ठीक है. उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करूंगा. फिर मैग्नीशियम को ऐड करूंगा प्लास्टिक कप में, तो एसिड और मैग्नीशियम दोनों रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज आएगा. उस चेंज को नोट डाउन करूंगा. दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेरिमेंट. और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के थ्रू मैं टेम्परेचर चेंज भी मालूम करूंगा. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में कहा था, मैं दोबारा से लिख देता हूं कि 1 cm क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ग्राम. तो अगर मैं 50 cm क्यूब ले रहा हूं, इट इज इक्वल्स टू 50 ग्राम. ऑल्सो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1 केल्विन. इसलिए चेंज इन टेम्परेचर को कभी भी केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते. जो डिग्री सेल्सियस के अंदर है हम उसको एग्जैक्टली यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट इज, हाउ वुड यू do the experiment to make sure the results obtained would be as accurate as possible. Again, reliability of the experiment की बात कर रहा है एग्जामिनर. Make sure. तो रिलायबिलिटी कैसे होगी. अब इस क्वेश्चन के अंदर रिलायबिलिटी है, इस एक्सपेरिमेंट में रिलायबिलिटी क्या हो सकती है. जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि ये एपरेटस टॉप से ओपन है, इसका मतलब हीट लॉस फ्रॉम द टॉप. सही है. सो आई नीड टू स्टॉप हीट लॉस. तो मुझे हीट लॉस स्टॉप करना है, एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज लैगिंग और इंसुलेशन. So heat loss from the top occur. So heat loss from the top occurs. So to prevent heat loss,
यूज कवरलेट, कवरलेट टॉप के लिए यूज होगा, एंड लैगिंग सराउंडिंग के लिए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इज how would you use measurement made in the experiment to determine the enthalpy change for the reaction between 1 mole of magnesium and sulfuric acid? आप सब जानते हैं हम सबसे पहले हमेशा हीट चेंज कैलकुलेट करते हैं, और हीट चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम मास यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे, और हम टेम्परेचर चेंज यूज करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं सबसे पहले डेल्टा क्यू कैलकुलेट करूंगा, विच इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है जब आप डेल्टा क्यू कैलकुलेट करते हैं तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम 1 मोल की कैलकुलेशन करेंगे। सो कैलकुलेशन फॉर 1 मोल टू गेट the enthalpy change. Okay, all right, let's move on to the next part of the question. Let's see what we have in that. My goodness, that's the end of the question, and that shows something unique and extraordinary. Write an ionic equation for the reaction between magnesium and aluminum ion. Okay, I need to write that equation. Okay, let me write it. This is magnesium, this is aluminum ion, converting into magnesium ion and aluminum. चार्जेस तो बैलेंस नहीं है, तो मुझे चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं वर्किंग कर लेता हूं, पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, सही है, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी भैया। कॉन्सेप्ट देखो ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं। ये मैग्नीशियम है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम सल्फेट में एंड हाइड्रोजन गैस में, और तुम जानते हो कि ये स्पेक्टेटर आयन है तो दे विल कैंसिल आउट विद ईच अदर। तो तुम्हारे पास टेक्निकली इक्वेशन ये होगी, मैग्नीशियम +2 हाइड्रोजन आयन, एरो मैग्नीशियम आयन +H2। सही है, ये मेरा स्टेप 1 हो गया कॉन्सेप्ट का। स्टेप 2, aluminum is reacting with sulfuric acid, converting into aluminum sulfate and hydrogen gas। अब याद रखिएगा कि ये जो सल्फेट आयंस हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये होगी 2Al +6 हाइड्रोजन आयन, एरो 2 एल्यूमिनियम आयंस +3H2। सही, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखो यहां पर मैग्नीशियम एटम रिएक्टेंट साइड पे है, यहां भी मैग्नीशियम एटम रिएक्टेंट साइड पे है, यहां पर मैग्नीशियम आयन प्रोडक्ट साइड पे है, यहां पर मैग्नीशियम आयन प्रोडक्ट साइड पे। तो इस केस में मैग्नीशियम तो बिल्कुल सेटल्ड है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन नोट करो यहां पर एल्यूमिनियम आयन रिएक्टेंट साइड पे है, जबकि यहां पर एल्यूमिनियम आयन प्रोडक्ट साइड पे है। इसका मतलब आई नीड टू फ्लिप दिस इक्वेशन सो दैट ये एल्यूमिनियम आयन रिएक्टेंट साइड पे है। तो जब मैं इसको फ्लिप करूंगा, अलर्ट रहना बहुत, जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो मेरे पास सिनेरियो ये होगा,
2Al3 plus 3H2 2Al plus 6 हाइड्रोजन आइन। सही है। तो अब नोट करो, जरा चेक करते हैं कि हमने इक्वेशन सही की नहीं की। ये एल्यूमिनियम आइन फ्लिपिंग के बाद रिएक्टेंट साइड पे है, ये एल्यूमिनियम आइन भी रिएक्टेंट साइड पे, ये एल्यूमिनियम एटम मेटल प्रोडक्ट साइड पे है, ये भी प्रोडक्ट साइड पे। इसका मतलब अब एडजस्टमेंट हो गई है। सही है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको कॉपी करूंगा एज इट इज इसके साथ। अलर्ट रहना बहुत। तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम आइन एंड हाइड्रोजन गैस में। सही है। अब आप नोट कीजिए, यहां पर 6 हाइड्रोजन आइन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन आइन है, तो जाहिर सी बात है मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हाइड्रोजन आइन एक दूसरे से कैंसिल होंगे, 6 हाइड्रोजन भी कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन ये होगी 3 Mg प्लस 2Al3 प्लस एरो 2Al प्लस 3Mg2 प्लस। ये फाइनल इक्वेशन बनी आपकी। इस इक्वेशन को मैं यहां एडजस्ट कर रहा हूं। ये 3 मोल होगा, ये 2 मोल होगा, ये 3 मोल होगा और ये 2 मोल होगा। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई थी टेक्निकली कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस इक्वेशन को मैंने उठाकर वहां पर कॉपी किया है, ये कॉपी किया है। सही है। तो ये इक्वेशन बन गई, कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको। अच्छा, अब जाहिर सी बात है एग्जामिनर हमसे यहाँ पर कुछ और भी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज डेल्टा H1, तो डेल्टा H1 है ये, और सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम डेल्टा H2 है। तो वो कह रहे हैं हैसेस लॉ अप्लाई करो और एंथैल्पी चेंज डिटरमिन करो। और एंथैल्पी चेंज 1 मोल के लिए डिटरमिन करना है इन फॉर मैग्नीशियम। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं हैसेस लॉ अप्लाई करने के लिए मैग्नीशियम लूंगा और एल्यूमिनियम लूंगा। हम सब जानते हैं कि एरो की डायरेक्शन अपवर्ड रखेंगे। देखो ये मैग्नीशियम है और ये भी मैग्नीशियम है, तो जाहिर सी बात है इस जगह के ऊपर मैग्नीशियम तो नहीं ले सकता हूं। इस जगह के ऊपर क्या लूंगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये एल्यूमिनियम मेटल है और ये एल्यूमिनियम आइन है। तो इसका मतलब इसको मैं डेल्टा H2 का नाम दूंगा। और क्योंकि ये ऑलरेडी 2 मोल्स था, है ना, ये ऑलरेडी 2 मोल्स था, या यहां देख लो ये ऑलरेडी 2 मोल्स था, इसलिए इसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इट विल रिमेन एज इट इज। इनफैक्ट तुम यहां पर भी 2 लिख सकते हो, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि यार नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है दोनों के, विच इज वाई इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। सही। वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एज पर एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन। और जाहिर सी बात है ये मैग्नीशियम है, ये कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम आयन में, इसकी वैल्यू को हमने डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। डेल्टा H1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 मोल्स चाहिए हमें, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था। ओरिजिनली ये 1 मोल था, और क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए मैं इसको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, आई रिपीट अगेन, मैग्नीशियम ओरिजिनली 1 मोल था, लेकिन मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए एंथैल्पी की वैल्यू को भी उसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन नोट करो, एल्यूमिनियम जो था वो ओरिजिनली 2 था और बाद में भी ओरिजिनली 2 ही रहा, विच इज वाई मैं उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बनाएंगे और अरेंज कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 0। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि आपसे 1 मोल के लिए करेगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। सही है। और सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा डेल्टा H5R इक्वल्स टू डेल्टा H1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस डेल्टा H2, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, सो दैट हमारे पास 1 मोल की कैलकुलेशन आ जाए। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। If you have any question, you can ask me.